Okay, students, let us proceed to discuss our new type of integral that is written as integration of e to the power x into f of x plus f dash x dx. Students, f dash x is the first order derivative of f of x and they are added with each other and multiplied by an exponential function e to the power x. Okay, then the result is written as e to the power x into f of x plus c. C is an arbitrary constant or integral constant. Arbitrary constant or integral constant. Okay, clear? Let us prove this result. Let this one is I is equal to e to the power x into f of x plus f dash x dx. Okay, clear? Let us open the bracket. We get this one is equal to e to the power x f of x dx plus integral of e to the power x into f dash x dx. Okay, here two functions are multiplied with each other. First one is e to the power x and second one is f of x. F of x is any function. Okay, f of x is a function in x and e to the power x is fixed. That is our exponential function. And we know that let E for exponential function. और यहाँ पे हमको फिक्स है कि e टू द पावर x जो है सेकंड फंक्शन ही एज्यूम किया जाएगा. ओके, क्योंकि सिंस e टू द पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूजिंग आवर ऑर्डर ऑफ द फंक्शन दैट इज लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. सो यहाँ पर f ऑफ x कुछ भी रहने दीजिए. ओके, बट e टू द पावर x अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसे आप सेकंड फंक्शन एज्यूम कीजिए. ओके, सो दिस वन इज योर सेकंड फंक्शन एंड दिस वन इज योर फर्स्ट फंक्शन. सिंस यू हैव टू यूज आवर प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u into v. ओके, so this is equal to f of x into e to the power x dx plus e to the power x into f dash x dx. Okay, this one is your first, this is your second function. Okay, now apply product rule. आप कैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हो? दैट इज फर्स्ट फंक्शन f of x into integral of e to the power x dx minus d by dx of f of x into integration of e to the power x dx और यहाँ पे आप लिखते हो dx. अब बचा क्या? प्लस f of प्लस इंटीग्रल ऑफ e to the power x into f dash x dx. आ गया समझ में? बहुत आसान है. ओके, clear? This one is equal to f of x into and we know that derivative of e to the power x ही होता है. आप इसको लिख दीजिए and let derivative of f of x that is first order derivative of f of x is f dash x और यहाँ पे तो उतना ही होगा, e पावर x ही होगा. आप dx लिखिए प्लस e to the power x into f dash x dx. देखिए ये तो पूरा का पूरा कट गया. पूरा का पूरा कैसे भाई? नेगेटिव पॉजिटिव मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंट है, कट गया. बचा क्या? दिस वन इज इक्वल टू f of x e to the power x plus c. ये हमको मिल गया. ठीक है, तो ये तो रहा. आप इसको क्लास 12th में थ्योरम भी बता सकते हो. दिस वन इज यूजिंग एज ए थ्योरम इन क्लास 12th. ओके, क्लास 12th में क्लास 12th के सिलेबस में है और थ्योरम जैसा एग्जाम में आता है. ओके, सो आवर रिजल्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into f of x plus f dash x if the second function is the
addition of two functions in such a way that the second function is the first order derivative of first function। आया समझ में? अगर आपका सेकंड फंक्शन जो है वह फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है, देन और किसी से मल्टीप्लाई किया गया है and multiplied by an exponential function e to the power x, then your integral is written as e to the power x। तो रहेगा, ये तो फिक्स है, जो भी रहेगा एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन वो रहेगा किसी भी पावर के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स, नॉट एफ डैश एक्स, ये तो उसका डेरिवेटिव है, मतलब ओरिजिनल फंक्शन। ओके, सो द रिजल्ट इज e to the power x into f of x plus c। c क्या है? c इज योर आर्बिट्ररी कांस्टेंट और इंटीग्रल कांस्टेंट। ओके, तो इस तरीके से लेट अस, ये रहा आपका रिजल्ट, और हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है डिपेंडिंग ऑन दिस रिजल्ट। ओके, तो थोड़ा सा कॉपी कीजिए। लेट अस सॉल्व आवर एग्जाम्पल्स। ओके, प्लीज मेक अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1 विच वी हैव टू सॉल्व, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into 1 प्लस साइन x cos x डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर x dx। अब जैसे ही आपको e to the power x एज अ मल्टीप्लायर फंक्शन दिखेगा या फॉर्मेट दिखेगा, यू हैव टू लर्न अबाउट योर टाइप ऑफ इंटीग्रल, that is integration of e to the power x multiplied with f of x plus f dash x dx is equal to e to the power x into f of x। याद आना चाहिए, ठीक है। तो let us make so that there should be two functions in such a way that the second function should be the derivative of first function। तो हमें इस तरीके से आपको दो फंक्शन बनाना है। यहाँ तो कुछ सेपरेट आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ तो सेपरेट है नहीं, एफ ऑफ एक्स है, प्लस है, एफ डैश एक्स है, बस यही दिख रहा है कि यहाँ प्लस है, प्लस तो दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, e to the power x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आया dx। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमको पता है कि टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग फंक्शन चाहिए। वो क्या आएगा बाद में देखते हैं। ओके, हमें अपना टारगेट क्या है? टू एडेड फंक्शन चाहिए, क्योंकि प्लस तो है, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एलसीएम है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस वन इज इक्वल टू e to the power x, और ये क्या बन गया? सेक स्क्वायर एक्स बन गया, और देखो एक तो कॉस गया, एक बचा, दैट इज tan x dx। और अगर आप इसको f ऑफ x एज्यूम करते हो, इफ tan ऑफ x इज f ऑफ x, देन एक क्या हो जाएगा? दैट विल बी f डैश x। हो गया अपना आंसर। दिस वन इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है? e पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस c, एंड दिस वन इज इक्वल टू e टू द पावर x तो रहेगा, एफ ऑफ x आपने किसको एज्यूम किया है? tan ऑफ x को एज्यूम किया है प्लस c। तो ये तो रहा है आपका आंसर। कितना आसान है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको नोट कीजिए, और हम एक दो और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जिससे पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका सेकंड एग्जाम्पल विच इज रिटन ऑन बोर्ड, इंटीग्रल ऑफ e to the power 2x into 1 plus sine of 2x dividing by 1 plus cos of 2x। Students, we know that your type of integral is e to the power x, यहाँ पर e to the power 2x है। ओके, हमें जो पावर है e to the power 2x, वहाँ 2x 3x 5x नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अपना टाइप कैसा है? अपना टाइप e to the power x है, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ x है शुड बी 1, वो 1 होना चाहिए, मतलब 2x अकेला ही होना चाहिए। सॉरी, e का पावर, e का जो पावर है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेडिक्स, जो पावर है, इंडेक्स है, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए।
ठीक है, तो लेट अस मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, मतलब ई का जो पावर है उसको अकेला करना है, मतलब उसके कोएफिशिएंट को 1 करना है। वो कैसे होगा? लेट 2x इज इक्वल टू टी, तो बन जाएगा ना e टू द पावर टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन t हो जाएगा, तो t तो अकेला ही है ना, t का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। आएगा समझ में? तो इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो गया, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू लेट i, सो i इज इक्वल टू e टू द पावर t, और यहाँ पे क्या आया? 1 प्लस साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ टी, dx इज 1/2 dt। एक तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि जो टाइप है वह e टू द पावर x है, e टू द पावर 2x, 3x, 9x, 100x नहीं चाहिए, वी वांट ओनली e टू द पावर x। यहाँ पर 2x था तो मैं उसके पावर को चेंज कर दिया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे? दिस वन इज इक्वल टू, अब e टू द पावर x के बगल में जो था दैट इज f ऑफ x प्लस एफ डेक्स एक्स, वहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन चाहिए और जो दूसरा फंक्शन है फर्स्ट का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ क्या ऐसा हो सकता है? पहले तो हम इसको देखो, अभी दो लोग तो हैं, लेकिन ऊपर 2 लोग हैं, नीचे 2 लोग हैं, हमें सेपरेट चाहिए, सेपरेट। तो कुछ तो करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे? e टू द पावर t 1 प्लस साइन टी, साइन टी का मतलब क्या होता है? 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ टी बाई 2। ऐसा क्यों किया बताता हूँ। 1 प्लस कॉस टी का फार्मूला क्या है? 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे 1/2 dt, करेक्ट। देखो अभी यहाँ से तो 1 चला गया, यहाँ से 1 चला गया, वी गेट e टू द पावर t 1/2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, दैट इज सेक स्क्वायर ऑफ टी बाई 2, प्लस जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2 जाएगा, कॉस जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा tan ऑफ टी बाई 2 बचेगा, और यहाँ 1/2 dt है, ठीक है। अगर समझ में, एंड दिस वन इज इक्वल टू 1/2 को आप बाहर निकाल सकते हो, यू विल बी गेट e टू द पावर t और tan ऑफ t बाई 2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर ऑफ t बाई 2, और यहाँ पे आया dt, ठीक है। दिख रहा है सबको? क्लियर है ना? e टू द, अब देखो 2 फंक्शन तो आ गए, आपको चेक करना है कि क्या एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं, क्या एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं कि नहीं है। बिल्कुल हैं। कैसे? देखो अगर आप इसको f ऑफ x एज्यूम करोगे, f ऑफ x, तो ये क्या बन जाएगा? f डेक्स x तो बन ही जाएगा। लेट अस चेक, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ t बाई 2, देन f डैश x इज सेक स्क्वायर ऑफ t बाई 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ t बाई 2 इज 1/2। देखो पूरा का पूरा है 1/2 सेक स्क्वायर t बाई 2 है, तो अपने पास रिजल्ट क्या आने वाला है? I इज इक्वल टू 1/2 इंटू e टू द पावर t, और ये रहा आपका, अगर आप इसको f ऑफ x, क्योंकि t का फंक्शन है, अगर f ऑफ t एज्यूम करते हो तो यह f डेक्स t है, और यहाँ पे dt है, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर t और f ऑफ t प्लस c, दिस वन इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर t को फिर से रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज 2x इंटू f ऑफ t। f ऑफ t आपने किसको एज्यूम किए थे? आप f ऑफ t को tan ऑफ t बाई 2 को f ऑफ x, इसको अभी रहने दीजिए, ऐसा अभी रहने दीजिए, दैट इज f ऑफ t इज tan ऑफ t बाई 2, दिस वन इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x इंटू tan ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस c,
दिस इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर 2x इंटू tan ऑफ x प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर। 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 कटेगा, बचेगा क्या, 1/2 e टू द पावर 2x इंटू tan ऑफ x प्लस c। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले तो इसको पावर को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर को 1 बना दिया, ठीक है, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट कर दिया, मतलब आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह फार्मूला वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज, तो कुछ तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, 2 फंक्शन में आएगा। tan x tan t/2 को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल बी गेट 1/2 sec स्क्वायर ऑफ t/2 आपको मिलेगा। सो इफ़ अगर आप इसको f ऑफ t एज्यूम करते हो तो f डेक्स t मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पर t ऐसा, ठीक है, कुछ भी एज्यूम करके आप ऐसा कर सकते हो, मतलब वह उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो tan t/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर t/2 और डेरिवेटिव ऑफ t/2 का 1/2 होता है। तो वो पूरा एडजस्ट हो रहा है अपना रिजल्ट। सो यू विल बी गेट 1/2 तो था ही, e टू द पावर t f ऑफ t है क्या, tan ऑफ t/2 है। अब आप t को फिर से रिप्लेस कर दीजिए, t आपने क्या एज्यूम किया था, 2x एज्यूम किया था, तो 1/2 e टू द पावर 2x इंटू tan ऑफ t/2 दैट इज t इज 2x 2 और 2 कटेगा, आपको मिलेगा क्या, 1/2 e टू द पावर 2x इंटू tan ऑफ x प्लस c। ओके, सो इसको जरा आगे समझ में अच्छे से तो कॉपी कर लीजिए। ओके, एनी डाउट? ओके स्टूडेंट्स, तो here your third example is written, that is integral of e to the power x into 1 minus x upon 1 plus x square to the whole square dx। सो जैसे ही आपको e टू द पावर x दिखेगा तो आपको यह अपना रिजल्ट याद आना चाहिए, दैट इज e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ x प्लस f डैश x dx है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट विल बी e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस c। तो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ आपको दिख रहा है कि e टू द पावर x मल्टीप्लायर हो और ब्रैकेट के अंदर 2 सेपरेट एडेड फंक्शन है क्या, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए, दिस वन इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू, देखो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, दैट इज 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ऐसा मैंने लिखा। क्यों लिखा अभी आपको मालूम चलेगा। दिस वन इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू, ये रहा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, और ये रहा dx। आ गया समझ में, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर और a माइनस बी टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में था, मैंने ब्रेक किया। अब देखिए अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक तो लाइक फंक्शन आएगा, लाइक टर्म, दैट इज e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। भाई दोनों सेम लोग हैं, इसका पावर 1 इसका पावर 2 है, तो कैंसिलेशन हो सकता है, लिख दीजिए माइनस ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए। लिख दिया आपने, एक तो गया काम से, दैट इज e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख दीजिए। क्यों लिखा अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो हम लोग अपने टारगेट तक पहुँच चुके हैं। अब हमें एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट फंक्शन तो दिख रहा है, 2 अलग अलग फंक्शन हैं। फर्स्ट फंक्शन इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड प्लस तो मिल चुका है, प्लस है, और सेकेंड फंक्शन क्या है, सेकेंड फ्रैक्शन फंक्शन जो भी है क्या है, माइनस 2x डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो ये हमको 2 मिल गया। क्यों मिल गया, हमने एडजस्ट किया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट यूज़ करना है। रिजल्ट कौन सा, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स चाहिए। तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब हमें क्या करना है, किसी एक को f ऑफ x एज्यूम करना है और दूसरे फंक्शन को उसका डेरिवेटिव बता देना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं।
समझिए आपने अगर एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस को यहाँ क्यों भेज दिया, क्योंकि हमें इतना तो याद है कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x होता कितना है, -1/x स्क्वायर। भाई अगर आप d/dx ऑफ 1/x करते थे तो क्या मिलता था, -1/x स्क्वायर मिलता था। मुझे कैसे याद आया, क्योंकि 1/, देखो 1/x 1/x का टाइप का है कि नहीं, बिल्कुल है, इसलिए मुझे मालूम चल गया कि नेगेटिव आता है तो मैंने माइनस को यहाँ भेज दिया। करेक्ट। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज्यूम करते हो, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फ्रैक्शन इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, कैसे, इसी तरह से। एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज होता कितना है, एक तो 0 आता है और एक्स स्क्वायर का 2x आता है। ठीक है भाई, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल। ओके, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, -1/x का होल स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 0 प्लस 2x, तो कितना हुआ, -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लो मिल गया। ये क्या रहा है आपका, f' रहा। ठीक है, तो अपना इंटीग्रल कितना हुआ, i इज इक्वल टू e⁻x ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस f' dx। आ गया ना भाई डेरिवेटिव। ये किसके बराबर है, f' के बराबर ही तो है, इक्विवेलेंट टू f'। तो अपना रिजल्ट e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स आपने किसको ट्रीट किया है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, प्लस सी। ये रहा है आपका आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान है। ठीक है, अगर आपने एफ ऑफ एक्स को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज्यूम किया है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 0 प्लस 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, 0 प्लस 2x 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस के साथ। इसलिए मैंने माइनस को सेपरेट कर दिया था। क्यों, प्लस इंटू माइनस माइनस ही तो होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो इतना कितना हुआ, f' हो गया और एफ ऑफ एक्स को आपने एज्यूम किया था। सो एफ ऑफ एक्स प्लस f' इज इक्वल टू e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स। अब आप एफ ऑफ एक्स को फिर से रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका थर्ड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन योर result, that is e⁻x into f of x, e⁻x into f of x plus f'(x) plus c dx is equal to. Okay students, so these are your third examples. First, second, third example is integral of e⁻x into 1 minus x upon 1 plus x to the whole square dx. Okay, the answer is e⁻x upon 1 plus x square plus c. Okay, please make a note, कॉपी कीजिए फटाफट। समझ में आ गया अच्छे से, चलो।